to learn, and that is for everyone, each one of you. See, what happens is, I don't know how many people have played hockey or played football or played even basketball. So what happens is, you make a pass to someone. Let's say you're playing football and you are near the goal, you're nearing the goal, and there is guy from your team who is nearer to the goal as you are. So you want to give him a pass, right? भव्या भव्या है क्लास में? भव्या, Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, अपने पास ऑप्शन है. एक मिनट पहले जस्ट मेरे को टाइटल लिख देना आज का. क्लास 10 SST हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप. हिंदी में इसको यूरोप बोलते हैं, इंग्लिश में यूरोप बोलते हैं, यूरोप. So Achintya, when you want to pass a ball to someone, Sir, can you hear me? yeah, Pratham, very barely. It appears as if you're talking from a basement. So if you want to pass, make a pass, there are two types of players. One player will just pass it, whether other person ready to receive or not. And बोले मैं तो तेरे को पास दिया था यार, तूने लिया नहीं, साला तेरी गलती है, मेरी क्या गलती है, मैंने तो पास दिया था. And the smart player will do, he will see if the other guy is ready to pass, to receive, or maybe make some signal, make some sound, take the name, Ravi, come on, ऐसे करके करेगा. So the chances of the first pass, the former pass being successful are very less, 10%, 15%. But the chances of second pass being successful are very high, maybe 75 to 80%. Communication is like that, Achintya. If you want to say something to me, first you have to get my attention. Okay. And then you tell what you want to tell. And this is not only with me, it is anywhere in communication. This is a very unique, very fundamental communication principle. If you want to communicate to someone, get the attention first. Get the person's attention first. Achintya. Otherwise, then again, तो मैंने तो बोला था, सुना नहीं. So if when people have that kind of thinking, वो उनका communication अच्छा नहीं हो पाता. I make sure whenever I am talking to you guys, I try and call you by name, try to get your attention, and then make my point. Okay, Achintya. Yes, sir. Okay, now tell me what you want to say. Yes, sir. Sir, I wanted to say that कि sir कुछ वर्कशीट हैं जिनमें माजिनी का वो आता है, शॉर्ट नोट आता है. इवन मुझे लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है कि माजिनी का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में भी आएगा. तो सर उसका शॉर्ट नोट मैं लिखने आता हूँ तो सर वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाता. तो सर आप वो ढंग से थोड़ा बता दो. मार्जिनी कौन है? माजिनी सर. सर जेड, डबल जेड. डबल जेड है? यस. ये स्पेलिंग ठीक है मतलब? सर वो इटालियन. सर दो लोग हैं, वो एक मुझे सब पता है. मार्जिनी मुझे और एक मजीनी है. मुझे का भी पता है, मुझे जिसुबे गारबाल्डी का भी पता है, मुझे विक्टर एमुअल 2 का भी पता है भाई, मुझे सब कुछ पता है. ठीक है, मुझे यंग इटली भी पता है, मुझे यंग यूरोप भी पता है. मैं तो सिर्फ इतनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अपना ये स्पेलिंग जो है ये तकरीबन ठीक है कि नहीं. स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ. हाँ सर, वो तो सही मेरा है इतना ही सर ये सवाल दो है. दो बंदे थे सर, वो एक मर्जीनी था और एक मजीनी था. ओके, मर्जीनी कौन था? सर मतलब मर्जीनी वो एक इटालियन. कौन से रिलेटेड, मर्जीनी कौन से कंट्री से रिलेटेड था? सर मर्जीनी भी इटली से था और मजीनी भी, दोनों इटली से ही थे. लेकिन तो मजीनी मर्जीनी सर, नाम तो मैंने आज तक सुना, मैंने आज तक मर्जीनी नहीं सुना. मर्जीना सुना है, मर्जीना. यू नो मर्जीना. हु वाज मर्जीना? नो सर. लोगों ने अलीबाबा 40 चोर की कहानी सुनी है? यस सर. नहीं सुनी? सर किसी ने सुनिए. भी सुनी अलीबाबा 40 चोर की कहानी? चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी. भाई पहली बात तो मर्जीनी नहीं है, मर्जीनी नहीं है, मर्जीनी है.
Achintya, Yes. okay. Yes. देखो, before we start the match, it is no point discussing one particular part of it. It will throw everything off the course. सब कुछ out हो जाएगा. I don't know what is your सर intention. सर मैच में Can ट्रायंगल sharing भी it with me. इनकम्प्लीट रह गया था. ठीक है, इसके बाद अभी मंडे तक मेरे साथ बियर कर लो, इनका एसएसटी का हो जाए, तुम सबका एसएसटी करा दो, उसके बाद वापस आई बैक टू ट्रैक. कार्तिक. यस सर. Guys, pay attention to me. This is extremely important chapter. I think board mate is what 15 marks or something. Term 1 में, if not more. इतनी ही देख लेता हूँ मैं जल्दी. एटलीस्ट दिल में एक बात नहीं रहेगी. बात यही है, वो पूरी नहीं होगी तो मुझे थोड़ा सर फॉर 10 मार्क्स. तो अगर कहता हूँ 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स है बिट. 10 मार्क्स है क्वाइट अ बिट. बहुत होते 10 मार्क्स. Okay. Just okay. नंबर ऑफ पीरियड 10 मार्क्स का है. एक ही चैप्टर है, अपन इसको खा जाएंगे भाई, तो छोड़ेंगे नहीं हम. ये 10 मार्क के 10 मार्क आएंगे आपके. Okay, but just one thing I want to say in response to what Achintya asked. Achintya, when you write a short note, so you write at least 6 lines on that. Okay. So okay, I think I should just answer your question before so that it is we are free, free and fair in the sense कि तुम्हें अपने क्वेश्चन का जवाब दिया है. Giuseppe Mazzini was born, if I'm not wrong, let's check it, 1813. He was born in Genoa, which is a coastal town of Italy. Right from the young age, he saw Italy as a nation and not a kingdom ruled by 4 different kings, which were the House of Savoy from Piedmont, Sardinia. Northern Italy was being governed by Austria. Central Italy was being governed by Pope with the help of French. And the Kingdom of Two Sicily, that is Naples and Sicily, was being governed by the Spanish Bourbon king, which was a relative of the French Bourbon king. Giuseppe Mazzini, इसको याद रखने का तरीका, उसको सूप पीने का बड़ा शौक था, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसका नाम रखो जिसूपे, सूपे पीने वाला, सूप पीने वाला, जी सूपे पीने वाला Mazzini. Giuseppe Mazzini formed 2 very important secret societies. Initially, he joined a secret society in which was known as Kalborini कुछ something, अभी आएगा, will come, which means coal burners, coal tar burners. From Italy, and he formed Young Europe. In the initial days of Italians, that is around after 1815, when he started his activity of unification of Europe and started speaking against the monarchy, he basically was not a revolutionary. He basically was a thinker and a philosopher. He inspired many philosophers of his generation. That is why he is respected a lot as compared to Giuseppe Garibaldi, who was a fighter and revolutionary. Giuseppe Mazzini's work created the sense of nationalism in many countries, not only one. He was exiled after a failed attack in Garibaldi. Garibaldi is a state in Italy. जैसे वो ऐसे जूता बनना शुरू होता है उसके नीचे. और he was exiled. Later he came back, and the King Emmanuel II, Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont, took his help to unite Italy. The unification of Italy started in 58
1858 and finished in 1871. Giuseppe Mazzini, I think, had died before that. This much, if you can write about Giuseppe Mazzini, I'll be more than enough. And I have not read this chapter. I read this chapter last week. Okay. कहाँ है अपना चिंत्या? Achintya. Yes, sir. So the problem happens when you guys try to mug up, memorize questions piece by piece. ये क्वेश्चन को रट लूं, ये क्वेश्चन को रट लूं, ये क्वेश्चन को रट लूं. हिस्ट्री लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पकड़ लो. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मींस टाइम वाइज. इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, और स्टोरी को समझते जाओ, सुनते जाओ और बुनते जाओ स्टोरी को. 2-3 बार अपने दिमाग में घुमाओ, वीडियो देखो, और जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सारे क्वेश्चन दिमाग में ऐसे बैठ. मैं ये नहीं कह रहा कि ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मेरा वीडियो देख लोगे, मेरे कर लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं. हाँ, उससे पास तो हो जाओगे, 70% आ जाएंगे उससे बिना किताब छुए. लेकिन अगर उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा तो स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने दिमाग में. अच्छा ये था, दैट वाज द रीजन, दिस वाज द रीजन. ओके, चल, कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. All right, guys. Okay, so I just take you through this chapter. वेरी इजी चैप्टर. तुम बिल्कुल पहली बात तो रिलैक्स हो जाओ, ये मत सोचो कि इतना कुछ है इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर में बहुत कुछ है. इस चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से आई, इस चैप्टर के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीस है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यूनिफिकेशन जर्मनी सर है, वो ग्रीस का यूनिफिकेशन नहीं सर, वो आजादी 1848 इंग्लैंड है. हाँ, या यूनिफिकेशन नहीं, इंडिपेंडेंस बोल लो. बट देयर आर 2-3 ways, because see, Greece is split over many islands, so you can say independence. But ओके, ये है. उसके बाद फिर गारिबाल्डी है, मैटरनिक है, जिसुपे मजीनी है, ये बहुत कुछ है होच पोच इसके अंदर. ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आईएएस के जो लोग अटेम्प्ट करते हैं वो 2-2, 3-3 साल इस चैप्टर में जो दिया वो पढ़ते हैं. इतना है इस चैप्टर के अंदर, पर हम उतना नहीं करेंगे. अपन स्टोरी समझेंगे, क्या स्टोरी है, जो अलग अलग कैरेक्टर है उनके बारे में बात करेंगे, उनका क्या पूरे के पूरे नक्शे में वो कहाँ फिट हो रहे हैं, क्या टाइमलाइन है, कैसे चल रहा है काम, वो समझेंगे, और उसके बाद हमें समझ में आएगा चैप्टर, गारंटी में दे रहा हूं. Sir, I'm having a doubt, sir. जा, गो अहेड प्लीज. Sir, is kingdom is a similar word to empire, or it is directly the So what synonym? happens? Kingdom is not similar, it is smaller. Okay, so when we say राजपूताना किंगडम तो छोटा किंगडम. when we say मुगल एम्पायर तो उसके अंदर बहुत सारे किंगडम शामिल है. ओके, जब हम बात करते हैं किसी भी एम्पायर की बात करते हैं, तो एम्पायर का मतलब उसमें बहुत सारे किंगडम शामिल है. किंगडम होता है छोटा. ओके दोस्तों, Understood, शुरू sir. करता हूं मैं अपनी बात. अगर टाइमलाइन से चले तो थोड़ा सा पहले टाइमलाइन में ले चलता हूं, उसके बाद टाइमलाइन से आगे लेके चलूंगा. कहानी की शुरुआत है वो है 1688 में. आई थिंक 1688 है. नहीं, 88 या 1688 में इंग्लैंड के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ विच इज नोन एज ग्लोरियस रेवोल्यूशन. ग्लोरियस रेवोल्यूशन. इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? आइडलेस. In this revolution, Parliament, which initially had started as an advisory council to the king, later it became very powerful. Parliament took over real power. King or monarch, that could be a queen also. King or monarch became a symbol, became just a symbol.
of or symbol of symbol of respect and empire. अभी एम्पायर बना नहीं, एम्पायर बनेगा अभी। यूके के अंदर अभी साथ के साथ ये भी मामला सॉर्ट आउट करते चले। ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, दिस इज किंग थे, दिस इज किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, और यहाँ है किंगडम ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के दो पार्ट है, नदर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड। नदर्न आयरलैंड आज की डेट में, सदर्न आयरलैंड इज ए डिपेंडेंट कंट्री। इवन टुडे सदर्न आयरलैंड इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। 1707 when the in India something happened in this year. I think Pratham Raj can tell me what happened in this year, or maybe Antriksh also. This is a very important year in Indian history. Metal. Yes, sir. Sir, the British sailor came to India first time on this year. वो तो 1608 में आए थे। ये लकी नंबर है, दो लकी। सर वो बहादुर शाह का कुछ हुआ था ना, ये दो लकी सेवन है इसमें, लेकिन मुगल एम्पायर के बड़ा लकी हो गया और मर गया था, और उन्होंने डाइड 1707। सर उनका डेथ हुआ था। किनका? औरंगजेब का। तो मैं तो बोल रहा हूँ ही डाइड, मतलब साला तू मेरे को तीन भाषाओं में बोलना पड़ेगा। सर कुछ बहादुर शाह जफर का भी तो हुआ था कुछ। No, Aurangzeb had died in this year. Bahadur Shah Jafar became the king. उसका तो कोई वैल्यू नहीं बहादुर शाह जफर की तरह। So in England, what happens is the Act of Union is passed. What is the meaning of Act of Union? It means now इंग्लैंड और वेल्स तो पहले से ही थे, ठीक है, इनको बोलते थे ग्रेट ब्रिटेन, साथ में मिला के दोनों को जीके, जीबी, ग्रेट ब्रिटेन। अब स्कॉटलैंड को मिला लिया, स्कॉटलैंड नाउ इंक्लूडेड। इसकी भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। स्कॉटलैंड की रानी थी, उसको मरवा दिया था एलिजाबेथ ने। जब एलिजाबेथ का मरने का टाइम आया, एलिजाबेथ का बेटा नहीं था, एलिजाबेथ ने कहा किसको राजा बनाऊं, तो जिस रानी को उसने मरवाया था उसी के बेटे जेम्स फर्स्ट को बना दिया, गद्दी पे बिठा दिया इंग्लैंड की। और उस बंदे ने जैसे गद्दी पे बैठा, स्कॉटलैंड तो उसका राजा था ही पहले ही, और एलिजाबेथ की वजह से उसको इंग्लैंड भी मिल गया, तो उसने दोनों को मिला दिया। Now it came to be known as United Kingdom. UK was born. Something else happened here, I think in the year 1801, वॉल्फ टाउन, बट उसको हम अभी नहीं करेंगे, कवर में कराऊंगा कवर उसके लिए। मुझे ईयर नहीं ध्यान आ रहा दोस्तों, अभी के लिए छोड़ देते इसको। दिस वाज 1801, हाँ वो सही, 1801 में आयरलैंड को भी साथ मिला लिया। नाउ इट बिकेम नाउ इट बिकम अगेन यूनाइटेड किंगडम, सारा सबको मिला यूनाइटेड किंगडम हो गया। लेकिन इससे थोड़ा सा पहले, अराउंड 12 years बिफोर दैट, समथिंग ग्रेट हैपेंड इन फ्रांस। फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई बार क्वेश्चन आता है हाउ डिड नेशनलिज्म इन यूरोप वाज इंपैक्टेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका आंसर ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ यूरोप saw that it was possible to throw away monarchy and establish the rule of people. French Revolution gave hope to the common man that from the centuries of yoke of the monarchy, he can be freed by a revolution. And this feeling now started getting into all the countries. Okay. The idea of liberalism was also born. लिबरलिज्म और नेशनलिज्म दोनों को मैं भी कनेक्ट करके बता देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले तो मैं यूरोप का नक्शा दिखाऊंगा, तो मैं मैप दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं बात करूँ
Soryuki. Shivu sir. John Soryuki. Shivu sir. Okay. Yeah. Sir, I believe the population of Northern Ireland is still protesting against UK. Is it so, sir? Against UK? UK तो protest खुद ही protest नहीं. No, sir. I mean they are. They want a revolution. Like they want to. They don't want to be the part of UK. That is a different thing, but they are part of UK today, and the UK protested. All right, sir. These guys are Catholic, Southern Ireland Catholic. Okay, चलो वो उसके बारे में बात होगी जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो. ऑलराइट, अभी नक्शा देखें हम. मैं तुम्हें नक्शा दिखाता हूँ बोलते अपना यूरोप का. ठीक, यूरोप के मैप को हम दो तरह से देख सकते हैं दोस्तों. या तो हम यूके की तरफ से शुरू करें या हम इंडिया की तरफ से शुरू करें. इंडिया शुरू करें तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है, लेबनान, इजराइल, टर्की, मेडिटेरेनियन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड यूके. लेकिन इधर से बेहतर है क्योंकि हम यूरोप की बात करें, हम इसके बारे में जाएंगे नहीं, तो हम यूरोप से ही बात करें. सो यूके, मैं जनरली बॉक्स बना रहा हूं, कोई एग्जैक्टली वो नहीं बना रहा. आयरलैंड रफली तुम्हें पता चल जाएगा. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ सी. हेयर इज फ्रांस. याद करना ही, ये नक्शा तुम्हें याद होना चाहिए. दिस इज स्पेन. दिस इज पोर्चुगल. दिस इज इटली. इटली इज नोन एज बूट ऑफ यूरोप बिकॉज इटली की शेप ऐसे ऐसे. इट इज लाइक ए, यहाँ पे वो है सर्डानिया, आइलैंड ऑफ सर्डानिया. सर यहाँ माल्टा भी है. माल्टा कहाँ है सर? पीछे की इधर? तरफ. नहीं सर, एक है, हाँ, बूट के माल्टा करके एक पीछे. आइलैंड ना. यस सर. देखूंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा, देख लूंगा मैं. ठीक है, होगा. आई थिंक यहाँ पे कहीं है माल्टा. ऑलराइट, फ्रांस हो गया दोस्तों. अच्छा, इटली हो गया. यहाँ हो गया जर्मनी. यहाँ हो गया बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड. यहाँ बीच में सी आ जाता है, इधर सी है, ठीक है. यहाँ है प्रुशिया, सॉरी प्रुशिया क्या, रशिया. प्रुशिया तो खत्म हो गया अभी, जर्मनी ही प्रुशिया था पहले. यहाँ है पोलैंड. सर पोलैंड ये तो वो सोवियत मतलब रशियन कंट्रोल में था ना. ये रशिया, हाँ ये रशिया पूरा, ठीक. जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे हंगरी नहीं, हंगेरी है ये. इधर है रोमानिया, ठीक है. यहाँ टर्की कंसिस्टेड ऑफ एंटायर ओटोमन एम्पायर, काफी एरिया था इनके पास. दिस इज मेडिटेरेनियन सी. ये है ब्रॉडली, ये ब्रॉडली नक्शा है, ठीक. ओके, अब देखते हैं. अब देखो, अब अभी ये सीक्वेंस देखना, इवेंट्स का सीक्वेंस भी देख, मैं इधर से बताता हूँ. 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच के अंदर जब हुआ तो एक बंदा उभर के आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट. ही वॉज ए नॉर्मल ऑफिसर इन द फ्रेंच आर्मी, बट अपनी मेहनत करके धीरे करके, ही डिड नॉट कम फ्रॉम रॉयल फैमिली, एक नॉर्मल ऑफिशियल का बेटा था. आर्मी में उसको कमीशन मिला, कमीशन मिलने से मेहनत करी, धीरे बढ़ता गया आगे, जनरल बन गया. फाइनली 1796 में ही अटैक इटली.
Why? He said, my mission, should I choose to accept it? ये कहाँ कौन सी फिल्म की लाइन है? Your mission, should you choose to accept it? तो लोग मूवी नहीं Spy देखते लग रहा है. Kids. Spy Kids. Your mission, should you choose to Mission accept it? Impossible. Mission Impossible. So he said, my mission is to remove monarchy and bring democracy. सर ये तो खुद मोनार्की ये तो कर खुद रहा यार शुरुआत सारे के सारे मोनार्क शुरुआत ऐसी करते हैं. हिटलर भी डेमोक्रेसी से थ्रू आया था. उसके बाद भाई इसने क्या करना शुरू किया? 1796 में ही अटैक इटली, एंड देन दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर. नेपोलियनिक वॉर. Wherever he went, people were happy. कि यार चलो इस राजा से छुटकारा मिला यार. Initially. Later he puts taxes and force service in army. In his army. People unhappy. और वहां पे करता क्या था? जीत के वापस आ जाता था, अपनी फैमिली के लोगों को, ओन फैमिली एंड रिलेटिव गवर्नर ऑफ दैट प्लेस. जहां से भी जीत के आता था गवर्नर. तो भाई ने इटली ले लिया, स्पेन ले लिया, ऑस्ट्रिया ले लिया, पोलैंड ले लिया, जर्मनी ले लिया, बेल्जियम ले लिया, सब पे ले लिया. सबको पहलम पेल कर दी. यूके को थ्रेटन करना शुरू कर दिया. They all ganged up against him. And in the year 1813, he lost his first battle. इस जगह का नाम था कुछ तो निप तो कुछ था लिपविग ऐसा कुछ तो था. He came back to France to start his army once again. He ruled for 100 days and then he attacked again. In 1815, at Battle of Waterloo, he was defeated. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये वर्ड अब ऐसे यूज होता है यार. मैथ्स एग्जाम प्रूव टू हिज वाटरलू, इंटरव्यू प्रूव टू हिज वाटरलू. मतलब जो चीज आपको से ना हो पाए उसको वाटरलू वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज और नॉर्मल कॉमन यूसेज में आ गया. वर्ड आया यहाँ से, बैटल ऑफ वाटरलू से. He was made a prisoner. He was kept on the island of I think Saint Helena, and he died in 1821. That is of no consequence now. What is consequence? Which were the countries which were fighting against him? UK, Russia, Germany, and Austria. 4 countries were fighting against him. And these 4 more than there बहुत सारे. जब मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग की बात करूंगा अभी मैं. तो मीटिंग हुई थी तो देखो, आप खुद देखो 1896 से लेके अब तक जो है ज्यादातर मोनार्की की हालत खराब होगी. तो मोनार्क्स जो है ना वो दे आर क्राइंग. ये बंदा कौन है? पागल है ये. सक्सेसफुल तो था ही, आधे से ज्यादा यूरोप पे इसने कब्जा कर लिया. मोनार्क्स आर क्राइंग कि यार कोई तो रोको इसको. हिस्ट्री में हमेशा ऐसा होता है, जब एक बंदा इतना पावरफुल हो जाता है तो बाकी के सारे लोग उसके अगेंस्ट आके गैंग अप होते हैं, उसको हराते हैं. दैट रिटेन्स द बैलेंस ऑफ पावर. तो भाई इस बंदे को 1815 में हरा दिया गया और इसको कैप्चर कर लिया. अब क्या होता है देखो, तो ध्यान रखना 1896 से जो बात शुरू हुई थी, 1789 से 1896 पे आई, वहां से हम 1813 आए, 1815 पे अब आ गए. अब 1815 में न्यू चैप्टर विल स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट इज दैट चैप्टर. Okay, at that time, I'll just tell you the power balance. Now let us just have a look at the power balance at that time. Power का क्या बैलेंस चल रहा था उस वक्त. दोस्तों ये रशिया नहीं है, मैंने गलती से लिख लिया, प्रूशिया है. प्रूशिया, माय मिस्टेक.
प्रूशिया पता है क्या एरिया है? ये जर्मनी का एरिया है ना ये, और ये थोड़ा ऊपर में, दिस इज द एरिया कॉल्ड प्रूशिया। प्रूशिया। अभी मैं आऊंगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा आएगा, उसका नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। Now let us look at the balance of power around 1815 and what happened in 1815. Why 1815 is such an important year in the history of Europe. So let's say यहाँ प्रूशिया है, ठीक है, यहाँ जर्मनी के कुछ, जर्मनी एक्चुअली 200 से ज्यादा स्टेट्स होते थे पहले। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने, एनबी ने इस पर अटैक किया, तो ही ऑर्गेनाइज द जर्मन स्टेट इनटू 39 प्रोविंसेस फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अदरवाइज यहाँ बहुत 200 स्टेट्स थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनसे बना हुआ था जर्मनी। ये जर्मनी, यहाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी में उस वक्त एक फैमिली होती थी, जिसका राज था, इट वाज कॉल्ड हैशबर्ग एम्पायर। हैशबर्ग एम्पायर के राजा होते थे यहाँ पे। यहाँ एक और राजा होता था, यहाँ पे किंग, एक और डायनेस्टी थी, उसका वो थे किंग फ्रेजर, तो कुछ तो नाम था, काइजर। ये प्रुशिया में एक डोमिनेंस था, ऑस्ट्रिया में डोमिनेंस, ये वीक था। प्रुशिया चाहता था मैं इसको मिला लूं, ये चाहता था मैं इसको मिला लूं। यहाँ पूरे जर्मन बोलने वाले लोग थे, पूरे एरिया में जर्मन बोलने वाले लोग थे। बैलेंस ऑफ पावर ऐसा, ऑस्ट्रिया के पास उस वक्त ज्यादा पावर थी, आर्मी भी अच्छी थी इनकी। 1815 में जब ये मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग को बुलाया किसने, इसकी चेयरमैनशिप किसने करी? ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, किंग नहीं था, चांसलर था, चांसलर। बाद में वो किंग भी बन गया। जर्मनी में भी होता है चांसलर। हाँ, जर्मनी में अभी भी होता है, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। ओके, इसका नाम था मेटरनिक, ड्यूक, एक और फर्स्ट नेम भी है, कहीं कहीं इसको मेटरनिश बोलता है, बोला जाता है वहां पे जर्मन लैंग्वेज में। अपन लोग मेटरनिक भी बोल सकते हैं, मेटरनिच भी बोल सकते हैं, मेटरनिश भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलो। ड्यूक मेटरनिश ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक मीटिंग बुलाई कि भाई अब क्या करना है, ये नेपोलियन बोनापार्ट को तो हरा दिया, अब हमें डिसाइड करना है कि आगे फ्यूचर में कभी भी यूरोप के अंदर इतना बुरा हाल ना हो, हमें एक बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करना है। तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई गई, उसका नाम रखा गया वियना कांग्रेस। क्यों? ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना, और वहां ये मीटिंग बुलाई गई, इसका नाम हो गया वियना कांग्रेस। कांग्रेस वर्ड का तुम लोग समझ लेना, ये राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है इसका। कांग्रेस का मतलब एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक मीटिंग। वियना कांग्रेस के अंदर मैंने बता दिया वो 4 लोगों ने पार्ट किया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, सम प्रेजेंटेशन फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस, एंड ऑफ कोर्स ग्रेट ब्रिटेन, यूके, और भी बहुत सारे थे छोटे मोटे। इन लोगों ने ये डिसाइड किया कभी लाइफ में ऐसा दोबारा ना हो कि फ्रांस इधर इसके अंदर गदर फैले, यूरोप के अंदर कोई गदर फैले। तो हम ऐसा करते हैं यार, ये पूरे एरिया को ना ऐसा बांट देते सब में, कोई भी ज्यादा पावरफुल ना बन पाए। ठीक, ये जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे हो गया क्या बोलते हैं, बेल्जियम, डेनमार्क। ये धीरे मैं इतनी बार बनाऊंगा, पर ध्यान देते रहो। तो हर बार मैं बनाता हूँ, तुम लोग खुद से प्रेडिक्ट करो कि सर क्या लिखने वाले यहाँ पे। ये नक्शा तुम्हारे दिमाग पे बैठ जाएगा, ये नक्शा बहुत जरूरी है पूरे चैप्टर के लिए। तो फ्रांस की जितनी टेरिटरी थी सबको छीन लिया गया वापस, जितना इसने कैप्चर किया था, ठीक है। सो प्रूशिया को बहुत सारा एरिया दे दिया गया, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारा एरिया दे दिया। जर्मनी के 39 प्रोविंस इनको छेड़ा नहीं, इनको ऐसे ही छोड़ दिया, इनका ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इधर एक बेल्जियम, एक स्टेट, इनके बीच में एक और स्टेट कुछ डाला था, हॉलैंड या कुछ डाल दिया। इधर इटली के अंदर ऑस्ट्रिया ने कवर कर लिया,
इधर से, ताकि फ्रांस इधर ना घुस सके। ऐसे करके बैलेंस ऑफ पावर दे दिया गया और सारे के सारे मोनार्क वापस गद्दी पे बैठा दिए गए। फ्रांस के अंदर जो गद्दी अब नेपोलियन बोनापार्ट के पास थी, उसके ऊपर बैठ गया। तुम्हें ध्यान है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जिस बंदे को मारा गया था, लुई, क्या नाम था उसका? सर Louis the Louis 16th. लुई 16। लेकिन 1815 में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, लुई 18 जो उसके बेटे का बेटा था, उसको गद्दी पे बैठा दिया गया। ही बिकेम मोनार्क। ओके, लुई 18 को बना दिया गया। और जो इसकी वाइफ थी, क्या नाम है? सर ये पिछले साल था सर, ये फ्रांस का था, पूरा पूरा रेवोल्यूशन था तुम्हारा फ्रांस का। तुम तब नहीं थे मेरे पास आए, पहला ही तुम मेरे चैप्टर पास था। नहीं, लुई 16 ऑस्ट्रेलिया से थी। लुई 16 फ्रांस के रेवोल्यूशन में मारा गया था। सर वो इसको तो सर गुलेटिन उसके कर बाद दिया था नेपोलियन के बाद चैप्टर खत्म हो मैक्सिमिलियन गया। रॉबेस्पियर ने। सर उसकी वाइफ चैप्टर खत्म, हाँ हाँ, चैप्टर तो खत्म हो ही गया था। बट मैं बता रहा हूँ अभी कि लुई 18 को बैठा दिया गद्दी पे, मोनार्क बना दिया फ्रांस का। और जो नेपोलियन बोनापार्ट की विडो थी, उसको यहाँ पे एक छोटी सी रियासत दे दी गई थी। उसका नाम मैं बताऊंगा, तुम्हें आएगा। यहाँ यहाँ इटली, यहाँ वो इधर ऑस्ट्रेलिया इधर से पड़ता थी है। ना। नहीं, यहाँ कहीं था, एक छोटा सा राज्य दे दिया गया था उसको। वहां की उसको बोला भाई तू ठीक ठाक रहे, थोड़ा सा छोटा सा राज्य था, ताकि उसकी भी लाइफ चलती रहे। ये हो गया। ओके, ये हो गया। स्पेन के अंदर तो बॉर्बन किंग थे ही। स्पेन के अंदर मैंने बताया बॉर्बन किंग, जो फ्रांस की फैमिली थी बॉर्बन किंग्स की, ये बॉर्बन किंग है। इनकी डायनेस्टी का नाम है बॉर्बन। बॉर्बन बिस्किट खाया होगा तुम लोगों ने कभी? यस सर खाए। हाँ, तो ये बॉर्बन डायनेस्टी थी, डायनेस्टी। और इन्हीं की एक ब्रांच यहाँ पे स्पेन में रहती थी, और उसी का राज्य था यहाँ टू सिसली में। ये जो इटली है ना, इसके टू सिसली, नेपल्स, और यहाँ पे सिसली एक अलग सा आइलैंड है दोस्तों, थोड़ा ऐसे फर्क है इनके अंदर। दिस इज कॉल्ड टू सिसलीज। यहाँ पे स्पेनिश बॉर्बन फैमिली का राज्य था, स्पेनिश बॉर्बन डायनेस्टी। ये रिलेटेड थे आपस में, एक दूसरे की हेल्प करते थे। ओके, अब क्या, अब तो ठीक है। फिर वापस से आ गई मोनार्की, और वापसी मोनार्की वापस आ गई। तब तीन तरह के लोग उभर के आए मोनार्की वापस आने के बाद। नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए थे अपने टाइम पे। उसने क्या किया कि जितने बहुत सारे, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, सारी प्रॉपर्टी राजा की मानी जाती थी। उसने बोला नहीं यार, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिस बंदे ने अपनी मेहनत से कमाई उसकी प्रॉपर्टी उसके पास रहनी चाहिए। ये जर्मनी के अंदर और यहाँ फ्रांस में भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग करेंसी चलती थी, अलग अलग जगह अलग अलग वेट चलते थे। यानी कि कहाँ 1 kg कोई यूज कर रहा है, कोई पाउंड यूज कर रहा है, कोई ½ kg यूज कर रहा है, तो उसने वेट से जैसे कर दिए थे। कुछ इकोनॉमिक सुधार किए थे। सर वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर, वही मतलब वेट्स की बात कर, वेट्स एंड मेजर उसी को बोलते हैं। दूसरा, कहीं 1 मीटर की वैल्यू यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो ट्रेडर्स को बहुत दिक्कत होती थी, व्यापार बढ़ नहीं पाता था, हर जगह कैलकुलेशन करते रहते थे, हर जगह। इनफैक्ट देयर वर 56 प्लेसेस दे हैड टू पे, 56 करेंसीज वर देयर इन दिस एंटायर एरिया। अभी हम जोल्वेरिन की बात करेंगे थोड़ा आगे चल के, उस कॉन्सेप्ट से भी तुम्हें रूबरू कराऊंगा। तो काफी कुछ अच्छे काम कर गया वो बंदा बोनापार्ट, और काफी इकोनॉमिक तरक्की हो गई। अब वापस से मोनार्की आई, तो अब 3 ग्रुप तुम्हें मिलेंगे मोनार्की के। पहला है दीज आर कॉल्ड व्हाइट्स भी बोलते हैं इनको, इनको बोलते थे क्या, कंजर्वेटिव। दूसरे लिबरल, और तीसरे हो गए रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स कहने लगे देखो भैया, राजा बेस्ट है, किंगडम बेस्ट है, एम्पायर बेस्ट है, हाँ we will agree for some changes. King should have some restrictions at least, and there should be more economy. In fact, इन लोगों का ये मानना था कि business and trade should now be used to improve economy so that kings get more money and he can make a bigger army. ये कंजर्वेटिव का कहना। लिबरल जो थे वो अब क्या है, अराउंड 1800 फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई थी। यूके सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज था, फ्रांस उससे कम था।
जर्मनी भी काफी इंडस्ट्रियलाइज था, सबसे कम रशिया था। इंडस्ट्रियल बाकी रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो माल बिक रहा था, अलग अलग देशों में जा रहा था, तो एक नई क्लास उभर के आ रही थी जो कि रॉयल तो नहीं थे, नोबल भी नहीं थे, बट वो मिडिल क्लास के लोग थे, पर पैसे कमा रहे थे अच्छा। प्रोफेसर भी आ गए, कुछ लॉयर्स आने शुरू हो गए, तो एक नया ग्रुप शुरू हुआ जो कि वर्कर और फार्मर तो नहीं था, ना नोबल था, बीच का था, लिबरल। इन्होंने कहा भाई देखो सुनो, ऐसे नहीं चलेगा, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक, और एक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, पूरा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जो कि मोंटेस्क्यू ने बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, है ना। मोंटेस्क्यू ने कहा था भाई तीन, वो पहाड़ी पे चढ़ गया तो 3 रस्सियां फेंकी थी उसने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। उसने बोला इनको सेपरेट करो, तो लिबरल उसी को बोलते थे कि, लेकिन लिबरल को एक दिक्कत थी, लिबरल इनको साथ लेके नहीं चलना चाहते थे, फार्मर को और वर्कर को। वो कहते थे वोटिंग राइट तो मिलेगा, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिनके पास प्रॉपर्टी है, वुमेन को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो लैंडलेस है उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये लिबरल थे। लास्ट में थे रेडिकल, सबसे गरीब तबका, सबसे मरा हुआ तबका, उसको बेचारा रोटी नहीं मिलती थी। इन्होंने कहा भाड़ में जाए लिबरल फिबरल, हम तो मारेंगे काटेंगे, हमें पावर चाहिए, सब बंदे को वोटिंग राइट चाहिए, एक एक बंदे को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और कोई पूरा पावर किसी के पास नहीं रहेगी। बाद में तो फिर बोले प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, तो रेडिकल से सर ऐसे ये हो। बाद में कम्युनिस्ट बन गए थे क्या? हाँ नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट इसी से कम्युनिस्ट निकल के आया था, इसी से कम्युनिस्ट निकल के आया था। सर ये थर्ड वाले को वुमेन राइट भी चाहिए था। हाँ वुमन का भी बोला इसने, तो इनको रेडिकल या रिवोल्यूशनरी बोल सकते हैं। जसूपे मजीनी टाइप के लोग इसी ग्रुप के बॉस थे, revolutionary. Okay, let us turn the next page of this history now, and I will now take you from 1815 से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये एक काम करता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ, 1815 से थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, हाँ वो कर लेते हैं, बीच में अगर कोई गैप रह जाएंगे तो उसको बाद में भर देंगे। नाउ 1815 से कहानी शुरू हो गई दोबारा से, फिर वो राजा आके सारे बैठ गए, तो लोगों के अंदर जो सुलग गई थी बात, जो चिंगारी लग चुकी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, वो उनको बड़ा परेशान करती थी। उन्होंने कहा यार ये तो साला हम फिर वापस इनके चक्कर में आ गए, इनके चंगुल में दोबारा से फंस गए, क्या तो करें, ऐसा करें कुछ ताकि हम लोग फिर से आजाद होना चाहिए। तो ये सीक्रेट सोसाइटी बननी शुरू होगी हर जगह, जैसे कोई मजीनी टाइप के लोग आने लगे, अंडरग्राउंड काम करने लगे, अंडरग्राउंड उन्होंने ग्रुप बना लिए, कोई पैम्पलेट छाप रहा है, कोई न्यूज़पेपर निकाल रहा है, ये सब कहानियां शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्या ये कहानी क्या नेशनलिज्म और आई कहां से। So let's see concept of nationalism. देखो तुम कभी भी ऑब्जर्व करना, चाहे दो तंबी हो साउथ इंडियन, चाहे दो मलयाली हो, चाहे दो तेलुगु वाले हो, चाहे दो बिहारी हो, चाहे दो पहाड़ी हो, जब भी वो कहीं मिलते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं। जब दो बिहारी मिलेगा काल काय बा, आज काय मतलब जो भी उनको बोलना, मराठी में आपस में काय झाला, की करते हो तुम्हें, वाली चार दुनिया भर के लोग चार खड़े हुए वहां पे, वो आपस में लैंग्वेज बात करते हैं। तो लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बिल्डर ऑफ बॉन्डिंग। जिस जगह एक लैंग्वेज बोली जाती है वहां के लोगों एक दूसरे से एक तरह का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये सारे कंट्री जो बने ये एक लैंग्वेज के बेस पे बने। फ्रांस बना फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए, जर्मनी बना जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए। ये बाद में बना, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में बहुत सारे राजाओं का राज था, डायनेस्टीज थी, अराउंड 25 के करीब डायनेस्टीज थी। डिसेंट्रलाइजेशन था। नहीं नहीं, से अगेन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं था, गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ डिसेंट्रलाइज नहीं था, एक सेंट्रल बंदे के हाथ में पावर थी, सेंट्रल भी नहीं, फैमिलीज के पास देख, और 25 अबाउट रॉयल फैमिलीज थी। मैं तुम कुछ के एग्जांपल तुम्हें बोल यूके के अंदर था विंडसर्स, हाउस ऑफ, इनको हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ विंडसर, हाउस ऑफ विंडसर। इधर यहाँ पे था एक हाउस ऑफ सेवॉय, जो कि इटली के राजा थे। स्पेन में मैंने बोल ही दिया आपको, हाउस ऑफ बॉर्बन। फ्रांस में भी बॉर्बन फैमिली थी, ठीक है। इसके अलावा
ये ऐसे से यहाँ पे इन्होंने बताया हैशबर्ग फैमिली थी, हैशबर्ग। जर्मनी में केसर। जर्मनी में प्रूशिया में केसर, जर्मनी तो था ही नहीं तब। यहाँ केजर्स फैमिली थी। यहाँ टर्की के में ऑटोमन्स थे, ऑटोमन्स। Excuse me, sir. हाँ जी, एक Sir, मिनट how बेटा, are एक मिनट the? रुक Yes, जा, sir. एक मिनट रुक जा बच्चा, बच्चे एक मिनट रुक जा बस। अब ये फैमिली सारी सारी वो कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लैंड का राजा जब हेनरी फर्स्ट, उसकी शादी हुई पोर्चुगीज के फैमिली में। यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम था, बताता हूँ मैं, सर अलेक्सेंड्रा करके था। अलेक्जेंड्रा और डिकोस्टा, ऐसा कुछ तो नाम था। तो इन दोनों फैमिलीज की शादी हुई, और यहाँ हमारा जो बॉम्बे है पोर्चुगीज के पास था तब। पोर्चुगीज ने बॉम्बे दे दिया दहेज में अमेरिका, इसको इंग्लैंड को, हेनरी फर्स्ट को, कि ये दहेज में तुम्हारा हो गया आपसे। ये ऐसे करते थे, मतलब इनकी बस आपस में शादियां होती थी, इनके आपस में रीति रिवाज थे, मिलना जुलना, दोस्ती लड़ाई सब कुछ। आम जनता नीचे कीड़े मकोड़ों की तरह घूमती रहती थी, इनको कोई मतलब नहीं था। एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है पोलैंड। पोलैंड के लोगों की पॉलिश लैंग्वेज थी, पोलैंड के लोगों की पॉलिश लैंग्वेज थी। अब कुछ लोग इनके अंडर में है, कुछ ऑस्ट्रिया के अंडर में है, कुछ इसके अंडर में है, किसका राजा ये है, किसका राजा है। पोलैंड के लोग इतने बट गए कि इनका खुद का कोई स्टेट नेशन था ही नहीं। somebody बड़ी डिवाइडेड अंडर हिम, somebody डिवाइडेड हिम। तो पोलैंड के लोगों को लगा, ऐसा हर जगह ऐसे ही हुआ। फिर जर्मनी में भी दो भाई थे, उनका नाम बताऊंगा क्या, मिंग ब्रदर या मिंग ब्रदर थे। उन्होंने स्टोरी कलेक्ट करी, जर्मन लैंग्वेज की बातें कलेक्ट करी, फोक सॉन्ग्स कलेक्ट किए। तो नेशनलिज्म कहां से आता है? नेशनलिज्म आता है लैंग्वेज से, और लैंग्वेज के साथ साथ ट्रेडिशंस। उस एरिया के जो ट्रेडिशंस हैं, जो बातें हैं, वेशभूषा है, क्लोथिंग भी मान लो, इससे एक नेशन बनता है। अगर किसी को नेशनलिज्म की भावना जगानी है तो पुराने इतिहास को खंगोलो, उसमें से कुछ चित्र निकालो, उन चित्रों को बड़ा करके दिखाओ, बोला हम तो ऐसे थे, हम तो ये थे, ये हमारी बातें होती थी, तो देश के अंदर नेशनलिज्म आना शुरू होना चाहिए। लेकिन सर नेशनलिज्म कभी फ्लैग नहीं आएगा जब आप एसी में बैठे हो, जब आप हर वीकेंड पे मूवी देखने जा रहे हो, जब आपको लेटेस्ट आईफोन आ रहा है, तब नहीं आता नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जब आता है जब तुम्हारे को कोई डंडे मार रहा हो बाहर से, तो तुम्हें खाने को ना मिल रहा हो, तो तुम्हें जब कोई भी पुलिस उठा के ले जाए, तब नेशनलिज्म आता है। आज बोलो इंडिया में नेशनलिज्म, भैया उस अपना चोपड़ा जी का आ गया, वो आर्मी मैन है, बाय द वे ही इज फ्रॉम आर्मी, इंडियन आर्मी, उसका आ गया गोल्ड मेडल, तो थोड़ा नेशनलिज्म आ गया, परसों तक वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो नेशनलिज्म, ये वाला नेशनलिज्म जो था, ये सफरिंग सा है। तो ऐसे हर स्टेट के लोगों को, इटली वालों को लगा, मैंने बताया इटली 4 लोगों में बटा हुआ था, इटली के जिसपे मदीन टाइप के लोगों को लगा, यार हम इटली बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले लोग हैं, हमारा एक नेशन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों हम पे 4 लोग अलग अलग डिवाइड करके हमें वो कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म का मतलब ये होता है, यहां से नेशनलिज्म शुरू होता है। ओके, आई थिंक देयर इज अ डाउट व्हिच विराज हैज। Yes, sir. So my doubt was, sir, that how are these, such royal families are established? बेटा देखो, ऐसा है, शुरू शुरू में ना कबीले होते थे, कबीले, ट्राइब्स। पहले तो इंसान अकेला रहता था, उसके बाद उसने इकट्ठा लोगों 15 लोगों का ग्रुप बनाया, शिकार करना शुरू कर दिया इकट्ठा, तो एक ट्राइब बन गई, कबीला बन गया, उसका एक बॉस होता था, उसमें और लोग जुड़ते गए। फिर एक दिन उनकी लड़ाई होगी दूसरे वाले कबीले से, एक एक सेम मेहमत का शिकार कर रहे थे, दोनों का तीर इकट्ठा लगा, उन्होंने बोला हमारी वजह से मरा, उन्होंने बोला हमारी वजह से मरा, उनमें लड़ाई होगी, उनमें घमासान हुआ। लड़ाई के बाद जो 2 बच गए वो बीच में आ गए, फिर वो कबीला थोड़ा और बड़ा हो गया। कबीले बड़े होते गए, बड़े होते गए। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में होता है कि जो वो थे छोटे छोटे जनपद थे, वो महाजनपद बन गए, और फिर सर वो लोगों ने अपना अपना नाम लिखना शुरू कर दिया, महामंडलेश्वर और ये चक्रधारी और फक्रधारी। धीरे धीरे रॉयल फैमिली ऐसे एमर्ज होती है विराज, ऐसे रॉयल फैमिली एमर्ज होती है, बाद में वो Understood, राजा sir. बन जाता है अपने आप। ठीक है, अपने को ये बोलने लगता है, अपनी सेना शुरू कर देते साथ में बनानी। शुरू शुरू में तो जब गांव का प्रधान था तो लठैत रखता था 8-10, तो कबीले का सरदार था तो 4-5 तगड़े तगड़े बंदे डंडे लगे उसके साथ चलते थे। बाद में वो अपनी आर्मी बनाना शुरू करता। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ रॉयल फैमिलीज एंड डायनेस्टीज। ओके, अभी कल तुम लोगों को मैं फ्रेडरिक सूरियो से बात करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा 5 मिनट है बस मेरे पास। मैं चाहूंगा कि मैं रवि से शुरुआत करूं। रवि, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द नोट्स, काइंडली रीड इट क्विकली। Yes, sir. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस तुम
जो टर्न ऑफ वो है ना, मतलब व्हाट डू यू कॉल दिस, टर्न ऑफ इवेंट्स, जो क्रोनोलॉजी है, उसको पकड़ लेना बस कि इतने साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, आगे चलते ना देखा सब काबू में आ जाएगा। हिस्ट्री जल्दी करो भाई। हाँ ओके, टू का हम तो चैप्टर 1 कर रहे हैं, करना है ना हमें, चैप्टर 1। ऑलराइट, ये मैंने इसमें बहुत बड़ा सीक्वेंस लिखा हो, कल तुम्हें पढ़ लेना, मैं अभी नोट्स शेयर करूंगा इसमें, तुम्हें ग्रुप में डाल रहा हूँ नोट्स, एक बार गो थ्रू द नोट्स। या ये सब छोड़ दो, ये पूरी स्टोरी में तुम्हें समझाऊंगा। आज मैं तुम्हें लेके आया हूँ, देखो मैं तुम्हें आज लेके आया हूँ 1707 एक्ट ऑफ रीयूनियन से 1789 में लेके आया मैं तुम्हें, फिर 1801 में आयरलैंड को और उन्होंने इकट्ठा कर लिया वॉल्फ टाउन को मार के। 1804 में नेपोलियनिक कोड आया, उसके बाद 1807 में जिसुपे मजीनी का पैदाइश हुई। 1815 में वियना कांग्रेस हुई। वियना कांग्रेस के अंदर मैंने बताया पी बार करके 4 कंट्री थे, प्रूशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। इन्होंने रिटर्न ऑफ मोनार्की कर दिया। और उसके बाद बस ग्रीक स्ट्रगल कल बताऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे लेके आ गया, वापस जाऊंगा कल इसमें और आगे लेके चलें। या भाई यहाँ से पढ़ना जरा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। The French Revolution and the idea of nation. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about changes like the emergence of nation state. In place of different dynasties, empires of Europe, in 1848, Frederick Saurin, a French artist, visualized world as democratic and social republics. The first idea of nationalism came with the French Revolution in 1789. French Revolution led to the transfer of sovereignty from the सोवरेनिटी, सोवरेनिटी में समझ लो सोवरेनिटी क्या होता है। सोवरेनिटी वो होता है किसी देश के पास ये पावर हो कि अपने डिसीजन वो खुद ले सके, कोई उसको बाहर से रोके ना। आज हमारे देश में हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपनी सेना को बढ़ाना चाह रहे हैं। मोदी कहते हैं भाई ये बढ़ाओ, तो कोई बाहर से आके हमें टच ना कर सके, ये ना बोल सके नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। जब हम ये पावर ले लेते हैं तो उसको सोवरेनिटी बोलते हैं। For example, Sri Lanka was freed in 1845, 48, 1948 में श्रीलंका को आजादी दी थी अंग्रेजों ने, लेकिन सोवरेनिटी नहीं दी थी। वो आधी आजादी में डोमिसाइल दिया था 1970, तो उसको सोवरेनिटी नहीं बोल सकते। हम सोवरन हो गए थे 1947 में, हम आजाद हो गए पूरी तरह से, तो पूरी आजादी को बोलते हैं सोवरेन होना। Guys, I just posted the notes. इसको हम बाद में करेंगे। मेरे दिमाग में एक और बात आई थी तुम, हाँ ये कल की जो कहानी मैं शुरू ही करूंगा सोरियू से करूंगा। सोरियू, फ्रेडरिक सोरियू ने जो पेंटिंग्स बनाई थी उसमें एक पेंटिंग खास है, उससे क्वेश्चन आता पक्का। व्हाट आर द मैसेज फ्रॉम द फ्रेडरिक सोरियू, कल उससे शुरू करूंगा कि कैसे ब्रोकन चेन पड़ी है, ऊपर कौन खड़ा हुआ है और यूनिटी की देवी खड़ी हुई उसके हाथ में, वो सब है, ये सब आगे कौन सा कंट्री पीछे कौन सा कंट्री, कल इससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज बताओ आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट किसी तरह का भाई, तो मेरे को यू कैन गिव इट टू मी नाउ। हाँ भाई दसो, सार्थक, अंतरिक्ष, अचिंत्या, जल्दी जल्दी बोलो यार। रवि, भव्या, No doubt, कार्तिक, sir. शिरोई, Sir, no doubt. नो डाउट्स एज ऑफ नाउ। विराज, सात्विक, चलो Sir. No doubt, कल कंटिन्यू करते हैं एंड बड़ा मजा आएगा। वीडियो देख लेना और जो मैंने नोट्स भेजे एक बार उसको पढ़ लेना। ओके, एक बार पढ़ लेना, रीडिंग मार देना, जो समझ में ना आए छोड़ देना, उसको मार्क कर लेना ये नहीं आया मेरे को समझ में। चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir.